Hello students, welcome to our English class. In our today's English class, we are going to start our chapter number 4, the question answer section, okay? In this chapter, my dear student, first of all, the name of this chapter is A Football Match. In this chapter, my dear students, we all have seen about a football match. जिसमें एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को लेटर लिख के उसने जो भी लाइव एक्सपीरियंस महसूस किया है वो सबके बारे में यहाँ पे बताया है, ठीक है? So come with me, my dear students, and let's try to complete the question answer section of this chapter. So पहला हमें क्या करना है? Let's see. Choose the correct option to complete the sentences given below. Okay. The letter is about. Letter किसके बारे में था? If a football match. The writer of the letter was a fan of Mumbai Dragons. Okay. He was watching, listening the match in the stadium. ठीक है? This was his first experience of witnessing a match in this manner. Okay. Now B, answer the following questions. ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? What is the purpose of writing the letter? Okay. So the purpose behind writing this letter, Neil wants to share his life experience of watching a football match in the stadium for the first time with his friend. Okay. 2. What are the feelings of the writer of the letter as he writes it? Quote some words from the text to support your answer. Okay. The feelings of the writer of the letter as he felt when he was writing this letter, he was really feeling very happy. Okay. And he was feeling very grateful that he got a chance to witness a live football match in front of his own eye. ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे आप ले सकते हो, जब फुटबॉल मैच चल रहा था तो वो बोलता वाओ, ठीक है, क्या गोल किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब आप लेके यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है. थर्ड देखिए, as we approach the stadium my happiness knew no bounds. Okay, why was he so happy? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है थर्ड का. So this is your question number थर्ड का ये आंसर है. As we approached the stadium, my happiness knew no bound. It was our first chance to witness a live match. Okay. Now the next question देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे. Describe the scene inside the stadium. स्टेडियम के अंदर का सीन कैसा था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, this is the answer number 4. We entered inside and the atmosphere was full of activity. There are so many people wearing their favorite team's color, waving flags and cheering loudly. Okay, this is your answer number 4. Now the next question देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे. Question number 5. Did Neil like the match? Write 1-2 sentences from the text to support your answer. Yes, Neil liked this match very much. Okay, तो स्टूडेंट्स आपको 1-2 सेंटेंसेस लिखने हैं. ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे ये देखिए. ओके, when the match began, तो एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे, एग्जांपल के तौर पे ये आंसर नंबर 5 है आपका. As the match began, Neil was completely lost in the match. Okay, and he was continuously cheering for his favorite team, that is Mumbai Dragons. ठीक है, चलिए. So students, अब आप ये देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है. Which team was performing better from the beginning? Mumbai Dragon team was performing better from the beginning of the match. 7. What was the role of the crowd in the match? Crowd क्या कर रही थी? Crowd was continuously cheering for their favorite team. 8th one, provide an example of team spirit from the text. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये रहा. देखिए स्टूडेंट्स, आपसे टीम स्पिरिट की बात पूछी जा रही है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, द क्राउड बर्स्ट इनटू चीयर्स एज द प्लेयर्स सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री बाय हगिंग ईच अदर. द अपोनेंट टीम कांग्रेचुलेटेड द विनर्स. ओके, दिस इज योर आंसर नंबर 8. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह, नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, तो चलिए देखते क्या है. द ऑथर और द लेटर the author wrote the letter to tell about his family to his friend. ये गलत है. This is false. He went to the stadium with his parents and younger brother. This is also false. The atmosphere inside the theater was full of activity. This is also false.
When they reached the stadium, the match had already begun. Okay, false. The opponent team was ahead in the beginning. False. Both the teams performed well. True. Now think beyond the text. Write some qualities of a good player as reflected in the text. Okay, the some qualities of good player are they hugged each other at the end of the match. Okay, they appreciated their effort which they have put in throughout the match. Okay, now question number 2. Have you heard the term sportsmanship? What do you understand about it? Explain. So student, sportsmanship का मतलब क्या है? Sportsmanship का मतलब होता है, आप लोगों ने सुना है ये वर्ड? स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब ये होता है मे बी कोई प्लेयर आपके अपोनेंट टीम का है, उसको कोई प्रॉब्लम फेस आई, उसको चोट लग गई है या उसके शू लेस खुल गए हैं, कुछ भी ऐसा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप उसके रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। अगर कोई प्लेयर को इंजरी आ गई है, ठीक है, तो आप सब लोग वेट करते हो कि उसका रिप्लेसमेंट है या फिर वो ठीक अगर है तो खेल सके। तो यही सारी चीजें ना स्पोर्ट्समैनशिप कहलाती हैं। तो इन सबको आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। वर्ड पावर देखिए, वर्ड यूज्ड एज नाउन एंड वर्ब, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये चीज पता होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका वर्ब है, कौन सा वर्ड आपका नाउन है। देखिए, द क्राउड चीयर्ड लाउडली टू सी द एक्सीलेंट बिग परफॉर्मेंस। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो चीयर्ड है ये आपका वर्ब वर्ड है, ठीक है। द क्राउड गिव अ बिग चीयर एज द टीम प्लेड, यहाँ पे ये जो चीयर है ये आपका नाउन वर्ड है। माई मदर ऑलवेज सपोर्ट्स मी, ठीक है, तो ये आपका वर्ब है। She was a great support to me during difficult time, ये आपका नाउन है, ठीक है। The match ended in a tie, match ended, तो ये आपका नाउन हो जाएगा। This shoes match perfectly with my dress, ये आपका वर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी का भी आप पूरा करेंगे, ठीक है। नाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब आप खुद से पढ़ेंगे, हम इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड वेदर दे आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको क्या बताना है, ये जितने भी लाइंस यहाँ पे लिखी हुई है उसमें कौन सा वर्ड आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहला है ही सेंट हर फ्रेंड अ बुकेट, ठीक है, तो देखो ही सेंट हर फ्रेंड ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे आईओ लिखोगे और अ बुकेट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डीओ लिखोगे। कैन आई हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये सीधी बात हो रही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पूरा सेंटेंस। आई गेव द कीज टू माई फादर, सो आई गेव द कीज ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू माई फादर, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस, अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। सो यहाँ पे स्टूडेंट ये टोटल 8 जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको आपको स्क्रम्बल करके क्या करना है, प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। उसके बाद कौन सा डायरेक्ट है उसको आपको अंडरलाइन करना है और इनडायरेक्ट आपको सर्कल करना है। बॉट अ पर्स, शी herself, okay, she bought herself a purse, okay। So students, जो अ पर्स है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, herself आपका इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। चाइल्ड गेस्ट gave a chocolate, okay, so the guest gave the guest gave the chocolate to the child, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका चॉकलेट है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो आपका गिव गेस्ट गिव द ये आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी का भी आप पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। सो यहाँ पे देखिए, हियर आर सम क्वेश्चंस अबाउट द ओलंपिक्स, वर्क विथ अ पार्टनर, आस्क एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय टर्न। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस है, ये आपको क्या करना है, पेयर में काम करना है, ठीक है। अब आप लोगों को ओलंपिक्स के बारे में बताना है इसमें। जैसे पहला, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, ठीक है, तो 18th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एथेंस में, ग्रीस में ओलंपिक गेम्स का होस्टिंग किया गया था, ठीक है। सेकंड है, व्हाट कलर्स आर द ओलंपिक रिंग्स, तो ओलंपिक में कितने रिंग्स होती हैं, टोटल 5 रिंग्स होती हैं, तो कौन कौन से इसके कलर्स हैं, देखिए ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डज CTS, all TS, 4TS मीन्स इन इंग्लिश। सो CTS का मतलब फास्टर होता है, OLTS का मतलब होता है हायर और 4TS का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर इंग्लिश में, ठीक है। आप एक बार फिर भी क्रॉस वेरीफाई से कर लीजिएगा। व्हाट डू द ओलंपिक रिंग्स रिप्रेजेंट, अब ये जो ओलंपिक के 5 रिंग्स है वो क्या बताते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट्स को जो कि ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो द ओलंपिक रिंग्स रिप्रेजेंट द 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड व्हिच पार्टिसिपेट इन ओलंपिक इवेंट्स, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द प्राइज गिवन टू विनर्स ऑफ द ओलंपिक्स इन एंशिएंट ग्रीस, क्या दिया जाता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन लोगों को जो ऑलिव होता है ना उसकी लीव से बनी हुई कुछ व्रत वगैरह दी जाती थी, ठीक है।
Which was the largest city to host the Winter Olympics? Vancouver, कनाडा। 2010 में ही सबसे बड़ा सिटी बना था जिसने विंटर ओलंपिक्स को होस्ट किया था। वेयर इज द ओलंपिक्स टॉर्च लिट एवरी ईयर? हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो सबसे पहले ओलंपिक की टॉर्च कहाँ चलती है? वो चलती है आपका ग्रीस में, ओलंपिया में, ठीक है। और ग्रीस में एक सिटी है ओलंपिया, वहीं से। When were women first allowed to compete in the Olympics? In 1900. Which was the first city which was the first host city to use artificial snow in the Winter Olympics? ये लेक प्लेसिड है यूएस का, ठीक है। Which was the first dog breed chosen to be the official Olympic mascot? ये क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। चलिए, B, do you have a sports day at school? What activities do you do on that day? Share your experience in class. आप लोग को अपनी क्लास में एक्सपीरियंस शेयर करना है अगर आप लोग के स्कूल में क्या होता है, स्पोर्ट्स डे होता है तो, ठीक है। C, some children are talking about the preferences about sports. Listen to your teacher carefully and then write answers to the questions that follow. So students, यहाँ पे जो टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए इनके बेसिस पे आपको क्या करना, आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपके क्लास पे कुछ बच्चे बता रहे हैं उन्हें कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, ठीक है। जैसे कि हु लाइक वॉचिंग फुटबॉल बट नॉट प्लेइंग, इसका आंसर आप देंगे। हु प्रेफर्स टेकिंग शॉर्ट वॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स, ठीक है। चलिए, नाउ राइट, your friend wants your advice about learning how to swim. Write a letter to your friend suggesting some good places that would be suitable to learn swimming. Express your interest to learn the same with him or her. Word limit 150 to 200 words. So students, आप लोगों को 150 से 200 वर्ड लिमिट के बीच में अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, क्योंकि आपका फ्रेंड आपसे ये सजेशन मांग रहा है या मांग रही है कि स्विमिंग करने के लिए कौन सी जगह सही रहेगी, ठीक है। तो आप उसको सजेस्ट करेंगे और साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे दैट यू आल्सो वांट टू लर्न स्विमिंग, ठीक है। तो आप अपने लेटर को स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, डियर से, ठीक है। एक्टिविटी क्या है देखिए यहाँ पे, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पोर्ट्स गिवन बिलो, मेक अ प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड्स रेलेवेंट पिक्चर्स एंड डेटा। यहाँ पे ये जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स दिए हुए हैं आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है, पिक्चर्स कलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। So student, this is all about our chapter number 4. Here our chapter number 4 ends. Okay, I hope you all got a very good understanding of this chapter and as well as its question answer section. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.